I have made over $70,000 on Fiverr in last few years, and in this video, I'll be sharing my experience of working on Fiverr, how life is on Fiverr as a freelancer, what are the ups of the platform, downs, plus and minus, everything, so that you can decide for yourself whether like Fiverr is a good fit for you or not, and whether you want to do it or not, without wasting your time learning directly from my experience, right? So let me share with you the positive sides of Fiverr, the plus of Fiverr, which I found in my experience. So I personally feel Fiverr is an amazing platform for people who want to get started in their online journey, like in their online business journey. कि मुझे भी online business कुछ तो करना है. So it's a really amazing opportunity for those people. It's also really good opportunity for people who are looking for, some like they are doing their job or business, but they are looking to get started like for side income. They want a side income, and people who are looking to start something where there is very low barrier to entry. There are very less investment or zero investment, and it can be started really, like fast without much investment of time or capital. If people who are looking for such kind of opportunities. So this is amazing for all those people. This is also really good for homemakers who want to stay at home and still, like make some good money online, right? So I found this is an amazing opportunity. I will say it's a blessing for these people. So why? How this actually works? So see, Fiverr is like a freelancing platform, right? What happens on Fiverr is you as a freelancer sell your services. Okay. What services? It can be website design, it can be video editing, it can be, like there are 500 plus, 600 plus service categories. You can go to fiverr.com and explore for yourself what different things people are selling on Fiverr. Like a lot of the SEO, and I can't even name all of that, but you can just go and look. Okay. So there are clients from USA, UK, Germany, Italy, so mainly from the first world countries, like mostly from USA. 95% clients are from USA, which means you make money in dollars. So that's why I'm saying it's an amazing opportunity, right? So people from USA, though, like they are the main customer base of Fiverr. You list yourself as a freelancer, and they approach you, and then basically, they approach you, you discuss, and then they give you an order, and you complete their work. Okay. For example, I'm selling website development. So I create websites for my clients, right? So this is the entire game. So now, because this everything is online, the complete business model, the complete conversation with clients, and your delivery and everything is online. You are delivering a service, right? So that's why it's very simple to get started. It's simple to get started in. You're not selling a product, physical product, or you're not selling, something where you have to invest a lot of capital or invest a lot of money upfront into marketing or software or tools or into staff and people and things like that. That's why it's very simple for everyone to get started. You it's like you just have to learn a simple skill which you can learn within 2 weeks or 3 weeks, and then you can basically start selling it on Fiverr. You don't pay any monthly fees or any software fees to Fiverr. They just take 20% from when you get your order. Okay, so that's why I'm saying it's an amazing opportunity for people to get started and start making money. All right. Because if you see other online businesses, wahan pe you have to invest some money. Like let's talk about e-commerce. So you will have to invest some, capital upfront. Okay. You have to pay to Shopify, you have to run ads and all these things, right? But on Fiverr, what happens is you don't pay anything. You just list your gig. Fiverr आपसे कुछ चार्ज करता नहीं है मंथली बेसिस पे गिग लिस्ट करने का और एनीथिंग लाइक दैट. कुछ भी चार्जेस नहीं है. आपको बस स्किल सीखना है कि भाई मुझे ये सेल करना है. लेट्स से वेबसाइट डेवलपमेंट या एसईओ या व्हाटएवर 600 प्लस कैटेगरीज आप एक्सप्लोर करने करोगे. सो आप उसमें से कुछ एक प्रॉफिटेबल पिक करते हो, एंड देन यू स्टार्ट बेसिकली लिस्ट कर देते हो फाइवर के ऊपर, एंड यू स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स. मार्केटिंग नहीं करना होता है आपको, बिकॉज अगर आप मार्केटिंग करोगे उसमें अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग सीखने में अपने आप में काफी टाइम जाएगा. एड्स चलाने में उसमें खर्चा होता है काफी. सो फाइवर टेक्स केयर ऑफ द मार्केटिंग. ठीक है. तो दैट्स वाई मैं बोलता हूँ बिगनर्स के लिए काफी सही अपॉर्चुनिटी है, मतलब मस्त है. ओके. सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग. यू डोंट हैव टू लाइक पे अ सब्सक्रिप्शन, और अपफ्रंट कुछ कॉस्ट नहीं उठा लेते हो आप अपने ऊपर. ठीक है. ऑर्डर आया तो ठीक, अदरवाइज आपका ऐसे भी कुछ नहीं जा रहा. Simple, right? So that's why it's an amazing opportunity, which I feel. And talking about the earning potential, it's huge. It's amazing. Okay. Now let's talk about the minus side of Fiverr, which I have discovered, which I personally feel in my career on Fiverr. So minus side mein I will tell two things. So first of all, see, Fiverr is a third party platform. Fiverr आपका अपना बिजनेस नहीं है, मतलब आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है. फाइवर अगर कुछ भी पॉलिसी चेंज करते हैं या कुछ भी उनका प्लेटफॉर्म पे अपडेट्स होता है, वो आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट योर डायरेक्ट बिजनेस, राइट? यू आर नॉट द ओनर, यू आर जस्ट अ
सर्विस प्रोवाइडर ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डाउन साइड जो मैंने ऑब्जर्व किया फाइवर की कुछ पॉलिसीज, एंड एज अ बिगनर कई बार यू वायलेट सम पॉलिसीज, एंड फाइवर काफी स्ट्रांग है इन सब चीजों में। अगर आपने कोई भी पॉलिसी को वायलेट किया, दे जस्ट ब्लॉक योर अकाउंट, ओके। दे ब्लॉक योर एंटायर लाइक द जो भी अकाउंट आप बनाते हो। एंड जब आपके अकाउंट ब्लॉक होते हैं, सो यू कांट ओपन अ न्यू अकाउंट फ्रॉम द सेम आईपी एड्रेस, मीनिंग द सेम वाईफाई, सेम इंटरनेट, वट एवर यू आर यूजिंग, एंड द सेम लैपटॉप। सो नाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट अगेन, तो आपको फिर से एक नया लैपटॉप, नया फोन और नया इंटरनेट कनेक्शन लगवाना पड़ता है। सो दैट इज द डाउन साइड, एंड आई हैव डन इट 4 टाइम्स। 4 बार मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था ड्यू टू सम मिस्टेक्स फ्रॉम माई साइड, एंड कभी कभी फाइवर के साइड से भी। सो दैट्स वाई वो एक डाउन साइड है जो आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस। बिकॉज हो सकता है कि आप मान लो 1 लाख कमा रहे हो महीने का फाइवर से, ठीक है, और कल सुबह उठ के आपका अकाउंट नहीं रहे आपके पास। सो दैट इज टोटली पॉसिबल। बट आई वुड से जब तक आप जानबूझ के कुछ वायलेट नहीं करोगे, या फिर आप अच्छे से लेट्स से आप स्टडी कर लेते हो कि भाई ये पॉलिसी से मुझे ब्रेक नहीं करना है, देन डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सबका आईडी ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं 5 साल 10 साल से, राइट। बट इट इज अ पॉसिबिलिटी, ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि फाइवर आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, तो उससे क्या होता है कि अब आप सी आप कंसिस्टेंट पैसा कब बनाते हो, जब आपके हाथ में मार्केटिंग का कंट्रोल, राइट। यू रन एड्स और यू डू द मार्केटिंग थिंग, एंड यू गेट कंसिस्टेंट लीड्स, एंड उसको फिर आप कन्वर्ट करते हो, यू मेक कंसिस्टेंट मनी, ओके। बट फाइवर पे क्या है, मार्केटिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल। फाइवर का जब मन करेगा आपकी गिग को रैंक कर देगा, जब आपकी गिग रैंक करती है तो काफी सारी इंक्वायरीज और ऑर्डर्स आते हैं विच यू मेक गुड मनी फ्रॉम, ओके। बट उसका जब मन करेगा वो डी रैंक भी कर देगा। सो इट्स नॉट इन योर कंट्रोल कि आप कब पैसा बनाओगे या कब नहीं बनाओगे, विच इज अनदर डाउन साइड। बट इन दो डाउन साइड के बावजूद भी वाई आई से इट्स एन अमेजिंग अ ब्लेसिंग फॉर न्यू पीपल। वाई? बिकॉज एंड न्यू पीपल से मेरा मतलब है जिन्होंने अपना पहला 10 20 लाख 30 लाख भी नहीं कमाया अभी तक, उनके लिए ब्लेसिंग है। वाई? बिकॉज काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार फाइवर पे तो आईडी कभी भी बंद हो जाएगी मेरी, या फिर गिग काफी डी रैंक होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उस पर स्टार्ट करके क्या ही फायदा है। बट वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड इज कि भाई आपको अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया, आपको अगर 1 2 लाख 5 लाख भी आप कमा लो, अपना 10 लाख भी नहीं इसीलिए अगर आप कमा लेते हो, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर करियर। कि आप उससे काफी कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हो अपने लाइफ का, एंड आप फिर थोड़े बहुत रिस्क ले सकते हो, बिकॉज यू विल हैव द कैपिटल टू रिस्क। रिस्क किस में? कुछ नया सीखने में, कुछ नया कुछ ट्राई करने में, यू नो। आप फिर मार्केटिंग करो, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करो जहां पे आपको वो कैपिटल यूज आएगा, राइट। सो इवन दो इट्स अप एंड डाउन, बट ओवरऑल व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंसेस कि ओवरऑल अगर आप देखो, लेट्स से आई हैव मेड 24 lakhs इन अ सिंगल ईयर, ओके। तो अब उसमें क्या हुआ कि अप्रैल में लेट्स से आई एम मेकिंग 4 lakhs, फिर मई या जून में, मई जून कुछ नहीं हुआ, काफी मतलब डी रैंक हो गया, ठीक है। फिर लेट्स से जून में मैंने कुछ किया, फिर 2 3 महीना नहीं चला, फिर सितंबर के आसपास आकर फिर ऊपर चला गया। तो इट्स अप एंड डाउन, ठीक है। बट ओवरऑल इफ यू सी 24 lakhs जो मैंने उस हाइप से कमाया, तो 2 lakhs पर मंथ तो हो ही रहा है ना, 2 lakhs पर मंथ एवरेज आउट हो रहा है, राइट। सो दैट इज द थिंग। सो कंसिस्टेंसी इनकम में आपको दिखता है। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि भाई 24 लाख का मैंने एग्जाम्पल लिया, लेट्स से मेकिंग 12 lakhs, 1 लाख का कंसिस्टेंसी तो आया ना। इवन दो यू मेड दैट 12 लाख इन जस्ट 3 4 months और 5 months, बाकी महीने आपके पास काम नहीं था, बट यू मेड द मनी। एज अ बिगनर यू डोंट हैव टू फोकस ऑन भाई कंसिस्टेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उन सब में आप फंसोगे तो फिर कहीं से स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे ना। आपको ये देखना है कि मेरा कुछ एक्सपेंस नहीं है, इट्स एन अमेजिंग थिंग। मेरा कुछ, आप जब खुद से कुछ करोगे तो आपको समझ में आएगा अमेजिंग, कितना अमेजिंग चीज है ये, कि आपका कुछ मंथली एक्सपेंस नहीं है, ना आपको कोई सॉफ्टवेयर या टूल में इन्वेस्ट करना है, ना एड में इन्वेस्ट करना है, ना किसी फ्रीलांसर को देना है, ना कुछ करना है, एंड जस्ट एक अपना गिग लिस्ट करना है। फाइवर इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग सम मनी फ्रॉम देयर। मतलब गजब, मतलब काफी अमेजिंग चीज है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ये था अप एंड डाउन दोनों फाइवर का, माइनस एंड प्लस। नाउ यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ बेस्ड ऑन वेयर यू आर इन योर जर्नी, इन योर लाइफ, यू कैन डिसाइड कि फाइवर आपके लिए सही है या नहीं है, राइट। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन अबाउट द प्लेटफॉर्म, कुछ भी और जानना हो, देन यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू यू। एंड आई हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड अनदर वीडियो जहां पर मैंने बताया है कि फाइवर पे गिग और मतलब पूरा प्रोसेस की स्टार्टिंग से जब आप स्टार्ट करते हो, देन हाउ एक्चुअली यू वर्क ऑन फाइवर। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। I'll link the video in description or somewhere on this video, आई बटन वगैरह कहीं तो आ जाएगा। And that was it for this video. If you found this video helpful, let me know, and just like, comment और जो भी YouTube वाला जो भी चीजें होती है वो सब कर देना। And I'll see you soon. Bye.